तो मैंने किसी को बताया नहीं ये वाली बात। चलो ये आज समथिंग जो ईशान पहली बार बोल रहा है, दिस इज ओनली हियर। मतलब बंदों को जैसे होता है ना कि इसे क्रश होता है, तो वो पूरे टाइम ऐसे सोचते मैंने रहते हैं सुना उसी कि के बारे लड़के में। जब प्यार करते हैं ना तो एकदम मतलब कुछ भी कर सकते हैं हाँ वही, एक तो जब बंदी के रिजेक्शन लिए। मिलता है ना तो वो बहुत सैड फेज में चले जाते हैं बंदे। तो उसमें देयर इज ओनली टू थिंग्स, ईदर इट इज कबीर सिंह बन जाओ, ईदर इट इज कि दारू सुट्टा पे आ जाओ, हाँ और इट इज कि भाई आई विल बिल्ड माई सेल्फ अप। करेक्ट, गाइज डोंट गेट हग्स। ओके, what else do you guys like? I mean in general, as in Okay. in general, say for example बोल रहे हैं बस करो। हम अपनी बातों पे ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So hi Ishan, welcome to this podcast and I am so excited to have you here today, and I am sure a lot of students are going to watch this podcast and they are going to draw so much inspiration from you. So how are you? How has your day been? Thank you, Suri, for inviting me here. You are too kind with the words. Day has been spectacular Awesome. in Mumbai. Looking forward to having a great conversation here. Awesome. So Ishan, you've had such a dynamic journey from enrolling yourself for IIT, preparing for IIT, then suddenly shifting to content creation, writing 2 books, and then having your own startup, Market Up. So how has your journey been like? Talk to me about your journey. What was your mindset while growing up? Yeah, my mindset while growing up when I was in school was all about, I had seen Iron Man movie. Okay. Right. And when I saw that, I immediately wanted to be like him. Okay. And so I used to ask my father to get me those remote control cars and helicopters. I used to take them apart and open them and see under kya hai. Acha. So very curious. Yeah, I was always like a tinkerer, curious about what's happening out there. How can I make something of my own? So 6th 7th class में I used to make things ऐसे ही अच्छा. कुछ भी I used to make a simple car या फिर make simple torch या कुछ भी इस तरह की चीज़ें. And that's what my childhood was all about. And then एक दिन पापा ने खोला CNBC TV 18 and वहाँ पे न्यूज़ आई कि IIT रुड़की का बच्चा 1 करोड़ का पैकेज उठाया Uber के थ्रू. Right, so I was looking at that news and my father was looking at the news. Father looks at the news, looks at me. I look at the news, I look at the father. Intense staring. And he's like, मेरा बेटा engineer बनेगा. Oh, nice. No, I really enjoyed engineering as well. Okay. It's not just that it was थोप दिया मेरे ऊपर, but I was actually interested into Okay. it. And that's how my interest started with engineering and maths and physics and all the things. So that's what my mindset has been when I was growing up. Awesome. So were you very studious while growing up or were you an average kid? I used to be an average kid. Okay. Till I overheard my father talking to my mother one day when they thought I slept. I did Acha. not. I was just listening to what they were saying, right? So I think I was in 5th 6th grade. Okay. तो पापा आते हैं काम करके राइट रात को 8-9 बजे तक एंड वो बोलते हैं कि यार मैं आज ऑफिस में था और हम सब डिस्कस कर रहे थे सारे कलीग्स के साथ कि मेरे बेटे कितने नंबर आए. सबने अच्छे नंबर बोले. मैंने बोला मेरे बेटे के तो इतने अच्छे नंबर नहीं आए, कुछ शर्मा जी के बेटे होने के बावजूद. हाँ. तो सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे तो मुझे बहुत अजीब सा लगा. तो मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, ये तो अलग कुछ चीज़ है, तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसे भी होता है कुछ. सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई वाज लाइक अब पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी. अच्छा. सो इट वाज लाइक दैट कि ऐसे कैसे पापा की वो एक होना चाहिए ना कि भाई शर्मा जी के मेरा बेटा है. यस, पापा फ्लेक्स करने चाहिए. वो फ्लेक्स क्यों नहीं कर पा रहे पापा मेरे. तो वो आपने सुन लिया एंड दैट वाज द टाइम कि अब क्या, चलो अब मेहनत करनी, अब कुछ करके दिखाना है. सो बेसिकली यू डन कंटेंट क्रिएशन, you've written बुक्स. तो ये थॉट कब आया कि यार कुछ अलग करना है, कुछ अनकन्वेंशनल करना है? यार ये सारा थॉट मेरे को आया जब मैं 2nd ईयर में पहुंचा था. 1st ईयर में स्टार्ट हुआ था बेसिकली व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो आई यूज्ड टू explore different skills because क्या हुआ था कि I wanted to go into an IIT. That was a dream. IIT मिला नहीं, BITS Pilani was the only option that I had other than that. तो मैं जब कॉलेज में आया तो the thing was that कि I had not known any other college other than IIT. अच्छा. I just thought कि मुझे बस इसी के अंदर जाना है and अगर ये नहीं हुआ तो फिर पता नहीं. Right? Okay. I was just tunnel vision into that. तो जब मैं IIT का सपना खत्म होकर के मैं बिट्स में आया तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाउ कैन आई स्टैंड आउट, राइट. आई जस्ट न्यू दैट द ओनली वे फॉर मी टू स्टैंड आउट वाज टू हैव दैट IITian टैग. ओके. अब वो नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा
कि लोग मेरे कॉलेज का नाम ही ना पूछें, राइट, कि आप मुझको बोलना पड़े कि मैं इस कॉलेज से हूँ, राइट, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मैं IITian हूँ, मुझे वो बोलना ही ना पड़े, तो वो नाम ही काफ़ी हो. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. नाम ऐसा करो काम हो जाए, काम ऐसा करो नाम हो जाए. हाँ, एग्जैक्टली. Awesome. So, जब एज यू सेड कि IIT में नहीं हुआ, तो व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? बिकॉज ऐसा होता है कि आई एम श्योर फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा या फिर रिजेक्टेड फील हुआ होगा. हाउ डिड यू डील विद दैट? आई सॉर्ट ऑफ न्यू कि क्यों नहीं हुआ था. एंड बिकॉज उसका रीज़न ये था कि मैं एंड मोमेंट पे पैनिक कर गया था, ओके, राइट, and I realized that I'm not so good at that point. I was not so good at handling pressure. Okay. In like a time situation कि सर टाइम बीतता जा रहा है, मैं क्लॉक को देख रहा हूँ, क्वेश्चन को देख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे को देख रहा है, क्लॉक मेरे को देख रही है, right? It's a love story. हाँ, so I was not able to take decisions wisely in pressure, and I did not practice for that. Okay. So because of that I could not do it. Right, I just could not make it. But उसके बाद I just knew this one thing कि भाई ये रेस खत्म हो गई. There was a point, मतलब I could have taken a drop year, Okay. which a lot of people do. जब उनका IIT नहीं होता है तो वो एक साल और अटेम्प्ट करते हैं. अच्छा. तो बेसिकली वो अपनी 12th के बाद एक साल अपना पूरा इसमें वापस झोंक देते हैं ताकि इन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए. Okay. I had decided कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कि ये खत्म हो गई मेरी लाइफ का ये चैप्टर. नाउ आई एम गोना ओपन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ. तो उसी सेम दिन जब मैं बाहर आया तो आप सबको एक वाइब हो जाती है, राइट, जब पेपर लिखते हो तो आपको आ जाता है समझ कि होगा कि नहीं होगा. हाँ, पता चल जाता है, मालूम पड़ जाता है कि कितना किया है, कितना नहीं किया है. कहीं बहस भले यू कैन से टू योर पेरेंट्स कि अरे मैं तो एकदम अच्छे गए मैं तो पेपर्स, तूफानी करके आया हूँ कुछ, राइट, अपने को पता है क्या होता है. करेक्ट. तो उस दिन मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला. ओके, पता चल गया. हाँ, मतलब वो वाइब आ जाती है. तो जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही आई डाउनलोडेड पाइथन. ओके. एंड पाइथन का एक कोर्स खरीदा यूडेमी से, एंड पाइथन कोडिंग करनी मैंने स्टार्ट कर दी. ओके, खुद से. सो हाँ, उसी दिन आई वॉच द फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड वीडियो जो होता है यूडेमी पर, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड आई नेवर लुक बैक. तो जो 2-3 महीने का टाइम होता है ना बिफोर यू गो टू कॉलेज आफ्टर द एग्जाम, तो उस पूरे टाइम में मैंने कोडिंग सीखी, मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें करी. ओके. जो करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पहले, किताबें पढ़ी बहुत सारी. तो ऑल ऑफ दैट ओपनड अप माई माइंड. ओके. राइट, एंड आई जस्ट न्यू दैट कि अब मुझे स्किल सीखनी है, एंड दैट इज ओनली वे दैट आई विल बी एबल टू satisfy myself and my curiosities. Awesome. तो क्या होता है ना, जैसे CA में बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं, एंड कभी कभी बच्चा अटेम्प्ट देता जाता है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि जैसे यू सेड कि वो फुल स्टॉप, यू न्यू कि यार वो फुल स्टॉप अब नहीं करने वाला, छोड़ना ही पड़ेगा. तो हाउ कैन समवन डिसाइड कि यार ये मेरे लिए चीज़ नहीं बनी है और मुझे इससे बाहर आना है? All years of your life are not created equal. ओके. आप अगर 17 के हो, 17 से 18 वाला जो साल होता है आपका इज नॉट द सेम एज 26 से 27 वाला साल. ट्रू. क्योंकि ये एक साल में आपकी इतनी लर्निंग और डेवलपमेंट होती है जो बाद में नहीं हो पाती. ओके. दैट्स जस्ट हाउ आई थॉट. बिकॉज आई फील कि वो एज में टाइम रहता है एक्सपेरिमेंट करने का. हाँ, तो आई कैन डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आई कैन वेयर सो मेनी डिफरेंट हैट्स, एंड मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे मैं कॉलेज में जाऊँगा, इतना लोगों से मिलूंगा मैं, तो I was like, it's just not worth it. It's just not worth it. Okay, तो I think you did that self talk, self realization हुआ होगा कि यार ये चीज़ बनी नहीं है तो छोड़ दो. मतलब जब कुछ चीज़ अपने लिए बनी नहीं है तो ज़्यादा उस पर फोकस मत नहीं. करो. बनी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता. आप मेहनत करो तो मिल जाएगी आपको चीज़. आप मेहनत करो तो आप कुछ भी आप कर सकते हो, राइट. बट द थिंग इज कि आई न्यू दैट आई नाउ नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. ओके. राइट, जैसे देयर अ पॉइंट जब स्टार्टअप फाउंडर्स एग्जिट ले लेते हैं कंपनी में. हाँ, क्यों लेते हैं एग्जिट? वो समझ आते हैं कि भाई ठीक है, आई बिल्ड द कंपनी, अब मुझे एग्जिट चाहिए, मुझे आई वांट टू बिल्ड समथिंग एल्स, राइट. तो वो एक रियलाइजेशन आ जानी चाहिए अंदर से कि आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, आई वांट टू ट्राई डू समथिंग. आपने बोला कि आपने एक ड्रॉप ले लिया 3rd ईयर में. सो वाज इट डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टेल देम कि मुझे नहीं करना है? बिकॉज एज यू सेड इनिशियली कि पापा का सपना था कि ये करना है, एंड देन सडनली आप बोल रहे हो कि अब मैं ये नहीं करूँगा. राइट. तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कन्विंस योर पेरेंट्स? तो बिफोर वी टॉक अबाउट द 3rd ईयर वी शुड टॉक अबाउट द प्रीवियस 3 years, राइट. तो जब मैं कॉलेज में था तो because of the lockdown I was with my parents, right. I came back to home and I was just with them in the house. तो आपने फिजिकल कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं किया? मतलब किया था मैंने. तो बेसिकली 2019 के जुलाई में आई एंटर्ड कॉलेज कैंपस में. आई यूज्ड टू लिव देयर, हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस.
पहले 6 महीने जो थे was brilliant. उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ 14 फरवरी 2020 मेरे को याद है आज वैलेंटाइंस डे ऐसे कुछ था, हाँ आई थिंक Okay. वही था. तो वो डे आई हैड अ CS प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ तो था, एंड मैंने प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए. एंड मिनट्स बिफोर दैट पेपर स्टार्टेड उन्होंने ईमेल आ गया क्या यूनिवर्सिटी से कि भाई कोरोना वायरस आ गया है, Oh, तो घर भागो, बच सब गए. सब हैज बीन टर्मिनेटेड, you will come back in 2 weeks, which Okay. became 2 years. So because of that I came back to home and I started taking use of my time to learn a lot of skills ओके to focus on my channel. And मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा being obsessed, ओके right? तो अगर आप मेरे रूम में आप झाँकोगे एट द मिडल ऑफ द नाइट 2 बजे खोल के देखोगे तो मैं आपको कुछ काम करते हुआ दिखूंगा, ओके राइट? मैं कुछ वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ स्किल सीख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ. एंड दैट वाज फॉर एवरी सिंगल डे. आई वाज जस्ट Okay. डूइंग समथिंग और द अदर. ओह वाओ इट वाज मैडनेस. सो यू केप्ट योरसेल्फ बिजी मैड ऑब्सेशन आई वुड कॉल Exactly. इट तो फितूर होता है ना जो एक कि मुझे ये करना है बस. तो आई वाज जस्ट सो क्यूरियस ओके अबाउट कोडिंग, Learning. अबाउट सोशल मीडिया. एक बहुत अच्छे मेंटर है मेरे, गैरी वेनरचक, जो ओके यस आपने यस देखा होगा. यस तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है ओह वाओ अबाउट परसिस्टेंस एंड जस्ट बीइंग एट ही इट. इज लाइक जस्ट डू इट हाँ, तो वो 6 महीने मैंने उनको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर. तो वो दैट वाज द पॉइंट वेयर माय पेरेंट्स वर लाइक कि ये कुछ कर रहा है. मतलब एट द एंड पेरेंट्स वांट टू मेक श्योर कि आप सेल्फ रिलायंट हो, ओके राइट? वही Correct. चाहते हैं वो. करेक्ट अगर आप बिना डिग्री के भी हो तो उन्हें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि एट द एंड गोल तो उनका वही है कि ये अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख ले, करेक्ट राइट? एंड खुद की डिसीजन खुद लेना सीख ले. तो क्या होता है, आप कॉलेज में स्कूल में जा रहे हो तो आपको लोग धक्का मार रहे हैं हाँ कि ये होमवर्क ये करके पढ़ना लेकर है, आओ, ये हाँ. मार्क्स लेकर आओ, ये ऐसा करो, ये वैसा करो. बट जब आप कॉलेज के बाहर जाते हो, करियर में जाते हो, तो कोई आपको कुछ बोलता नहीं है. हाँ तुम खुद Right. के मालिक खुद हो हाँ, योर ओन बॉस एग्जैक्टली. so there is no metric as such that you have to hit, right? तो you make your own metric. करेक्ट जैसे मैंने अपना मेट्रिक बनाया था कि आई मेड अ प्रॉमिस दैट हर 2 दिन में मैं एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे. ओके एंड तो- इक्विपमेंट्स आई एम श्योर प्रोफेशनल कुछ होगा नहीं कुछ नहीं था. Basic इट सा वाज phone. जस्ट मेरी मम्मी का फोन था जो वो 4 साल से यूज कर रही थी, तो Okay. मैंने वो यूज करना शुरू किया था. उसका पीछे वाला कैमरा धुंधला हो गया था. फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता था वीडियो. ओह तो इट वाज जस्ट दैट, एंड माइक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. ऐसे ही अच्छा. स्टार्ट So, रिकॉर्डिंग. मुंबई में था मैं तब. अच्छा तो City मुंबई of की गर्मी के Dreams. टाइम पे शुरू किया था. अच्छा, तो okay. पसीना आ रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई थिंक जब किसी की चीज़ का जुनून होता है ना तब यू फाइंड आउट वेज टू डू इट एंड नॉट Yeah. एक्सक्यूजेस. और किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है, मतलब कुछ बड़ा करना है तो एटलीस्ट स्टार्ट. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस जर्नी. सो Right. डिड यू एवर फील कि यार कॉलेज मिस आउट हो रहा है, या फिर जो एज होती है स्पेशली 17-18 सब इंजॉय कर रहे हैं और हम मे बी या तो मेहनत कर रहे हैं या फिर क्लूलेस है क्या करना है लाइफ में. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं? यार आई थिंक आपका मज़े करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ पे मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ Okay. बैठा हूँ आपके साथ, कुछ Podcast. नया सीखने को मिल रहा है, बातें कर रहे हैं हम मेरे को लोग. सीखने मिल रहा इससे पहले सुबह मैं एक और पॉडकास्ट में था, वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, सीख रहा था उनसे कुछ. तो इट माइट लुक लाइक वर्क कि मैं यहाँ पे आके कुछ कुछ अपनी जॉब कर रहा हूँ. आज क्रिसमस है, Yes, राइट? Christmas है. सब लोग अपने घर पे बैठ के अपनी And this फैमिली is how के we are इंजॉय कर रहे हैं. celebrating. और मेरी फैमिली बैंगलोर में है. मैं वहाँ से आज सुबह फ्लाइट लेकर के यहाँ पर आया हूँ पॉडकास्ट करने So के one लिए. thing that I want to say to everyone watching this कि ईशान सिर्फ 2 घंटे की नींद में and still he is so energetic. So नहीं, that ये is कुछ हेल्दी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए, but ये that मेरी गलती shows है. your dedication to your work. मतलब हाँ, तो आई जस्ट थिंक दैट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू लेट द वर्क कंज्यूम यू. okay. So That do is you the also best thing. feel कि जो हसल कल्चर है, जो लोग एग्जॉस्ट करके अपने आप को बस काम के नाम पे करते रहते, डू यू समटाइम्स फील कि इट इज़ टॉक्सिक? आई फील कि तुम अभी कर लेते हो, बाद में बॉडी जवाब देती है. आज सुबह जिसमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट? तो बता रहे थे कि यार तो बेसिकली ही गॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, BFSI कंपनीज जो हैं सारी, SBI, HDFC, Okay. कोटक, ICICI, वो सब उनके क्लाइंट हैं. Okay. एंड ही वाज इन दिस 20s व्हेन ही बिल्ट अ बिजनेस एंड हैव हैड ऑल दीज क्लाइंट्स. Oh wow. एंड वो सारे क्लाइंट क्लोज करने के लिए वो चक्कर लगाते गए बार बार. अच्छा. SBI के वो उसमें जा रहे हैं, ब्रांच में पिच कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बिजनेस आइडिया पिच कर रहे हैं. तो पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं, 3 घंटे जा रहे हैं, 3 घंटे आ रहे हैं, राइट?
तो मतलब वो वही बता रहे थे कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ था आँख का। ओके मतलब कैसे हो गया ये, तो बोले पता नहीं मेरे को, अच्छा। आई डोंट नो कैसे हुआ। मतलब चक्कर लग गए ज़्यादा SBI के, राइट। मतलब कुछ ना कुछ तो Correct. होता है, राइट। हाँ, यू हाँ. कैन नॉट डू एवरीथिंग राइट। करेक्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एकदम ऐसा हुस्न परी जैसे दिखो और आप काम भी कर रहे हो, Correct. आप सब कुछ हो रहा है। मतलब इट्स जस्ट दैट आप डिफाइन करो आपको क्या चाहिए लाइफ में, बट आप यू डोंट बिच अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसके साथ It's साथ very important. ध्यान रखते चलो। Exactly. सो यू नो माई फॉलो अप क्वेश्चन वुड बी, विद सो मच ऑफ ट्रैवलिंग, विद सो मच ऑफ वर्क, हर चीज़ का, कंटेंट क्रिएशन का, यू रिकॉर्ड सो मेनी वीडियोज, आई पर्सनली वॉच इट एंड आई फील सो इंस्पायर्ड। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? हाउ डू यू स्टे फिट? यार आई मेक श्योर दैट आई hit the gym every single day. Okay, no That matter is what. the most important thing for me. Okay. आज अभी नहीं कर पाया हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, but आज शवासन होगा मतलब because I'm sure that you must be tired. right. But gym is the most important thing for me. मैंने ये realize किया है. I never focused on my health. जब मैं Okay. अपने पूरे school time पे था, जब मैं college में भी आया था, तो I had very weird childhood, right? तो जब मैं 10th में था, my weight was 85. Oh. Right? I was like Okay. extremely chubby. Okay. Right? जो every girl in my school class used to come to me and be like chubby cheeks and then came 11th and 12th, right? I was super anxious about getting into an IIT, Okay. right? And because of that मैंने खाना इतना नहीं खाता था, ध्यान मैं नहीं दिन दिया। में बस 2 रोटी अच्छा। खा रहा हूँ, बैठ Oh. के दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, रात को 8 बजे आ रहा हूँ, एंड पूरे टाइम खाना नहीं खा रहा हूँ टाइम से। तो मेरा वेट बहुत कम हो गया था उस टाइम पे, अच्छा। मैं बहुत वीक दिखता था उस टाइम पे, Okay. राइट। एंड उसके बाद फिर आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। जब मैं कॉलेज के बाद आई रियलाइज दिस थिंग, तो अभी मैंने पिछले 1 साल से आई हैव कट डाउन ऑन ऑल प्रोसेस फूड, Sugar. शुगर्स, Oh wow. एंड दैट इज विजिबल ऑन माई फेस, Okay. राइट। अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो फोटो देखोगे एंड यू विल सी मी राइट नाउ, यू कैन टेल कि ऑब्वियसली Difference. हाँ द जॉ लाइन इज देयर। Oh. Girls, take notes. अरे नहीं, so I think that is very important. उसके अलावा I was learning a lot about skin, Okay. right? And skin पे सब कुछ दिख जाता है, जो भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है ना, वो आपकी स्किन पे दिखेगा सबसे पहले। अच्छा। नींद नहीं ले रहे हो, कुछ भी स्ट्रेस हो रहा है, वो इट विल शो ऑन योर स्किन। Okay. तो आई कैन सी लुक एट द पर्सन एंड टेल कि बंदे में इसकी क्या चल रहा है lifestyle लाइफ कैसी है, में, correct. राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव टेकन केयर ऑफ माई स्किन केयर अभी। तो आई भी सुबह से 2 बार सनस्क्रीन लगा लिया है, Okay. and I keep washing my face. So all of those things are important. I've really understood its value recently. तो मैंने ये भी देखा था, आई वॉज क्लोजली फॉलोइंग योर 75 days हार्ड चैलेंज। सो आई वॉन्ट टू नो कि हाउ हार्ड वॉज 75 days हार्ड, एंड डिड यू हैव एनी चीट डे, या फिर ऐसा कभी हुआ यार छोड़ो यार नहीं हो रहा है मतलब? मैंने रील बनाई थी उसके बारे में, तो आई टोल्ड एवरीवन कि मुझसे नहीं हो पाया for ये 75 देखी days थी मैंने, straight. यस यस। तो क्या द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मैं रुका नहीं, Okay. राइट। आई वाज नॉट लाइक कि अच्छा चलो मैंने एक दिन मिस कर दिया है तो मैं एक और दिन मिस कर देता हूँ, और एक और दिन कर दो, एक और तो दिन पूरा कर फिर खत्म हो जाता है। देता राइट। यस। तो वो एक जो तपस्या होती है ना, एक वो मेंटेन होनी चाहिए। दे कैन Okay. बी पॉइंट्स जब आप कभी जिम नहीं जा पाए, राइट। मतलब इट्स नॉट दैट कि 75 हार्ड इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मैं Okay. वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। तो इस सब चक्कर में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर दिन जिम Correct. करो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर दिन हेल्दी खाना खाओ, बट अनलेस तुम्हारा काम ही वही है। हाँ वही, राइट। तो इट वॉजंट लाइक माई ओनली गोल, इट वॉज अ लाइफ स्टाइल चॉइस आई टुक, एंड आई हैड माई लाइफ स्टाइल अराउंड इट, ओके। राइट। तो मैं देखती थी आप स्टोरीज डालते थे कि सामने केक पड़ा है एंड यू आर असेसिंग योरसेल्फ, हाँ, नॉट तो मैं विस्तारा में जा रहा हूँ, वो हाँ, केक दे रहे हैं, दे आर टेस्टिंग माय पेशेंस एंड योर करेक्ट। So but yeah, it was a good experience, and मैंने finally अभी I was with my friend in Bangalore, तो Okay. उसने ऑर्डर किया चॉकलेट ब्राउनी, और तब आई थिंक फर्स्ट टाइम खाया। and I had a bite, it was amazing, but ठीक है, it was like once in a blue moon kind of a thing. Okay. तो अच्छा था, we enjoyed, and I went back to my normal lifestyle. So Awesome. that's how it is. So the day starts with having like a high protein breakfast. So I take whey protein, I take peanut butter bread, then I go for a gym workout, Okay. then I go for walking, focus on my cardio. So all of that is going on. So that is how your day looks like. So basically you start with self care, Yeah. and then
बाद में what do you do the rest of the day? I recently made a morning routine video. Oh, wow. Will be coming out soon on YouTube. But Okay. again, it starts by about 7 or 8 o'clock. कभी 9 भी बज जाता है. I'm not too अच्छा. hard on myself. I'm like ठीक है उठूंगा सारे काम कर लूंगा. Hmm. And that's a good thing. I don't have a boss on my head कि ये करो ये करो. So what इस time do you पे. start your work and till what time does Work starts by 12-1. it? Okay. So it's very the later stages. Hmm. Right? I drink lots of water. Hmm. तो मेरे पास एक 1.5 लीटर की एक बॉटल है. Bottle, तो I हाँ. start drinking with that. Okay. उसके बाद I go and make my breakfast. Starting में as I said I make a shake. Yes. तो it's like प्रोटीन हैवी शेक होता है बहुत. Correct. तो उसमें 1 scoop of whey protein, फिर थोड़े से काजू बादाम Dry वॉलनट fruits. वो सब डाल देता हूँ. फिर I have some flax seeds and other Okay. seeds into it. फिर उसके अंदर एक बनाना और एक एप्पल डालता हूँ और उसको बना करके फिर शेक कर लेता हूँ with some milk. Awesome. And I have that along So with are you also a peanut good butter cook? bread. नहीं यार मतलब this is the only thing that I know how to cook. Awesome. But it is good. Like I like doing it myself. I would not want to outsource it. Okay. So that is peaceful. And उसके बाद फिर I go for my gym workout. 45 minutes to 1 hour I do that. Okay. उसके बाद वापस आकर के I go for a walk. Hmm. Either I will do like a low intensity steady state on the treadmill जिसके अंदर 30 मिनट के लिए you can have a max incline and you can just go for 3 or 4 speed. Or I just go out in the nature. तो मेरे घर के सामने ही बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है एक. There's a walking path that you can go around and I just take 5 rounds of that and उसमें 1 घंटा चला जाता है. And in the meantime just listening to some podcasts, learning something about my skin, about working out, about something else. And उसके बाद I come back, take a shower, dress up. And I dress up particularly when I'm in the house, right? मेरा कोई और ऑफिस नहीं है, घर ही ऑफिस है. But I make sure कि मैं dress up कर रहा हूँ. You feel that way. It changes your mindset. Correct. It मतलब you are no longer lethargic. You're no longer feeling कि मैं तो अभी तो उठा हूँ. You're in your same अगर if you're in your same घर के कपड़ों में तो वो घर के वाली vibe वो vibe नहीं आती वाली कि काम करने बैठे हैं. So that is there. उसके बाद फिर I put on binaural beats on my headphones. Okay. And I just start working. Awesome. So that's the thing. मैं कभी कुछ किताब पढ़ रहा होता हूँ, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, तो वो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगता है. And then I start off with my day. Awesome. So I feel कि ये सब करने में it takes a lot of discipline. सुबह उठ के खुद का especially when you're alone कि खुद का breakfast बनाना, gym जाना, health का ध्यान रखना. So how do you stay so disciplined? What would be your 3 tips कि to someone who want to be disciplined? I think that everything is like play to me. Okay. Right? So because of that, it doesn't feel like कि मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ेगी या पापा बोलेंगे बेटा ये कर ले. राइट तो वो बस हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल जिम. राइट जिम मैं क्यों जा पा रहा हूँ क्योंकि जब मुझे वो गेन्स दिखते हैं ना बॉडी में, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर नेकेड एंड आई सी माई सेल्फ इम्प्रूविंग, Okay. दैट इज द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर दैट कीप्स मी गोइंग. Okay. Right? So again, it might sound weird, but once you get on that treadmill, कि मैं हर दिन जिम जा रहा हूँ, then you automatically start seeing the gains, and वो gains ही आपके motivating factor बन जाएगा for you to be there consistently. So I think that is the case, and my work is like play to me, right? अगर आपको मैं बोलूँ कि आप GTA, Vice City खेल रहे हो, San Andreas खेल रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन कैसे मिलता है हर दिन खेलने का? काम का भी खेल लग रहा है. हाँ एग्जैक्टली. तो इट इज लाइक प्ले टू मी. मैं आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं सुबह मैंने पॉडकास्ट किया, तो इट वाज ऑल फन टू मी. तो इट डजंट सीम लाइक वर्क. मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि काम कर रहे हो. राइट. Oh, great. So I feel कि a lot of students जो teenagers होते हैं especially they are clueless या फिर उनको पता नहीं होता कि अपना passion क्या है. So how do someone find their passion? कि what is that one thing that they should do it और अपना passion कैसे find out करें? आपके पैशन चेंज होते रहेंगे एंड आपको उससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा. Okay. क्योंकि आपके पैशन हमेशा सेम नहीं रह सकते. राइट लाइक पहले मेरा पैशन था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. उससे पहले आई वांटेड टू बी आयरन मैन. राइट उसके बाद आई वांटेड टू बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर. राइट देन आई लर्न अबाउट ब्रांडिंग. सो इट विल कीप चेंजिंग एंड यू शुड बी ओके विद दैट. राइट तो द ओनली वे इज टू जस्ट कीप experiencing life. Keep That is experimenting. the only way that you will know कि क्या करना है मुझे and be okay with change. Okay. Just know that कि you will get bored with things at some point. Right? Like I got bored with recording normal videos. 10-15 minute के videos which had very surface level बातें. Okay. I was like I want to go deeper into every single topic and I wanted to really
हैव एन इंसाइट फॉर माई ऑडियंस एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे करके मुझे अपनी जॉब मिल सकती है, या फिर ऐसे करके मैं ये स्किल को सीख करके क्लाइंट ले सकता हूँ एंड आई कैन मेक अ लिविंग डूइंग दैट. बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, रिजेक्शंस आए होंगे. इज देयर एनी पर्टिकुलर चैलेंज और एनी मेजर चैलेंज दैट यू फेस इन योर लाइफ? मुझे एक बंदी पे क्रश था फर्स्ट ईयर में एंड उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था. ओके. एंड उससे आई वेंट इनटू लाइक अ माइंडसेट ऐसा एकदम देवदास हो गया था. उसी टाइम पे कबीर सिंह मूवी आई थी. हाँ, अच्छा. तो एकदम ऐसे वाइब में चला गया था मैं. एंड देन आई जस्ट गॉट माई सेल्फ अप. ओके. राइट, मैंने खुद को लिया एंड आई वाज लाइक लेट्स वर्क ऑन माई सेल्फ. So, तो मैंने खुद को देखा एंड आई वाज लाइक मैं क्या कर रहा हूँ. राइट, मतलब आई sort of understood why she rejected me after some point and I was like let's work on myself. Okay. Right, तो अगर वो नहीं होती तो शायद मैं नहीं करता स्टार्ट यूट्यूब इतने अच्छे से. हाँ, मुंबई में रहती है वो. Awesome. शीशा हो या दिल टूटेगा जरूर. Okay, so I think that was थोड़ा challenging phase to get over मतलब it. it was something that I could not tell to anyone. Some rejection feel हुआ होगा तभी एकदम. हाँ, तो I was alone. I did not have many friends. Second Okay. semester में क्या होता है कि आपकी सारी क्लासेस चेंज हो जाती हैं. So आपका शेड्यूल चेंज हो गया है. Okay. और नॉर्मली अगर आप जिन लोगों के साथ बैठोगे क्लासेस में वही दोस्त बन जाते हैं. फिर तो फर्स्ट सेमेस्टर में सारे दोस्त चेंज हो गए. अब मेरे नए दोस्त बन ही नहीं पा रहे थे उस टाइम पे. अच्छा. एंड तब मैंने उस बंदी को आस्क आउट किया था, उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था. एंड व्हाट हर्ट मोर वाज दैट वी वर फ्रेंड्स बिफोर. When I asked her out, she said कि I cannot do this right now. I would want to be friends. No, ठीक है, कोई बात नहीं. And then she stopped being friends as well. तो she completely scene zoned me. Okay. Right, तो that felt even worse. I was like कि अब तो मेरी दोस्त भी गई. Right, so that was बहुत ज़्यादा बुरा लगता है I feel. Exactly. तो मैंने इसके बारे में बात करी थी in my TEDx talk जो मैंने अभी दी थी recently. But ठीक है, I think that was important. The patient needed it. Okay, now you've moved on. Yeah. Did it affect your work, your routine? Absolutely it did. Yeah, I just used to lay down on my bed. मतलब बंदों को जैसे होता है ना कि इसे क्रश होता है, तो वो पूरे टाइम ऐसे सोचते रहते हैं उसी के बारे में. लड़की जब प्यार करते हैं ना तो एकदम मतलब कुछ भी कर सकते हैं. हाँ वही, तो जब रिजेक्शन मिलता है ना तो बहुत सैड फेज में चले जाते हैं बंदे. तो उसमें देयर इज ओनली टू थिंग्स. ईदर इट इज कबीर सिंह बन जाओ, either it is कि दारू सुट्टा पे आ जाओ, हाँ, और it is कि भाई I'll build myself up. करेक्ट. राइट, तो मैंने किसी को बताया नहीं ये वाली बात. चलो ये आज समथिंग जो ईशान पहली बार बोल रहा है. दिस इज ओनली ऑन माय टेड टॉक एंड हियर. क्योंकि इट्स नॉट अ रेसिपी. ओके. राइट, मैं मेरी वीडियोस में बताता हूँ कि आप ऐसे वीडियो एडिटिंग सीखो, आप ऐसे क्लाइंट लो, दैट्स हाउ यू कैन मेक अ लिविंग डूइंग व्हाट यू लव. दैट्स अ रेसिपी. ओके. बट ये रेसिपी नहीं है कि आप अपना कटवा लो और फिर अपनी फिर आपको मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि सब पे नहीं होता. करेक्ट. नॉट एवरीवन कैन गेट बैक इन लाइफ एंड डिसाइड कि ठीक है आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. सम पीपल गेट इनटू डिप्रेशन, सम पीपल चूज wrong things. लड़कियां तो हेयर कट करवा लेती है, मतलब इतने सुंदर बाल होते हैं और सीधा, मतलब आई हैव सीन अ फ्यू कि एकदम शॉर्ट, एकदम यू टुक दैट हार्ट ब्रेक सीरियसली. हाँ, तो that's why I don't talk about it, but that was the reality. क्या होता है कि एज यू सेड कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसी चीज़ होती है तो. और स्पेशली स्टूडेंट्स में क्या होता है कि तुम्हें पढ़ना भी है, स्पेशली अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ना भी है. और इससे क्या होता है, ये अगर ये सब इश्यूज होते हैं कि जो चीज़ याद रखनी है वो याद नहीं रहती है, और जिसे भूलना चाहते हो उसकी याद सताती रहती है. तो कौन सी इंस्टाग्राम रील देखी आपने अभी इसके? तो इससे कैसे डील करें, मतलब पढ़ाई करनी है, अगर समझो कि पढ़ाई करनी होती है उस टाइम पे, तो स्टूडेंट कैसे ये फेस से डील करे? फिर नहीं करते डील इसके साथ, या तो अटेम्प्ट करो, एक्सपीरियंस करा जा सकता है. आप यू कैन नॉट फोर्स योर इमोशंस टू गो, राइट? That just never works. So is it with time? It just flows with time. Okay. तो cry. अच्छा. रो आप, मतलब there's nothing wrong with letting those expressions go out. Nothing wrong with you crying or you expressing your sorrows and your pain. Okay. It's just that कि बंदों के पास नहीं होता है कोई. फॉर एग्जाम्पल मेरी दोस्त है एक, तो वो शी पुट अप अ स्टोरी सेइंग कि आई जस्ट द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, कुछ रो रही थी वो, कुछ लोगों ने और नीचे लिखा था कि डोंट रिप्लाई टू माय स्टोरी. हाँ. तो मैं उससे पूछा कि क्या हुआ था उस दिन तूने डाली दी स्टोरी, तो बोली हाँ यार मेरे को पता है, अगर मैं बोल दूंगी तो मेरे को 10 लोग कॉल कर देंगे, मैसेज आ जाएगा, मेरे को एकदम हो जाएगा. ट्राई डूइंग दैट एज अ गाय एंड सी हाउ मेनी पीपल कॉल यू बैक. लड़कियों को तो मिल जाते हैं 10 लोग सुनने के लिए, बट लड़कों आई फील कि वो लोग अपने इमोशंस इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते जल्दी. सो डू यू हैव, वो है ना कहावत है कि द ओनली टाइम अ गाय रिसीव्स फ्लावर्स इज एट हिज डेथ बेड. ओह नहीं, मैं अगर कोई देख रहा है, आई
प्रे की मतलब जल्दी से जल्दी समन गिव्स Flower यू मिले। लड़कों को अच्छा लगता है क्या? डज गाय आई मीन डू गाइज लाइक इट व्हेन समन गिव्स देम? Absolutely, like इज इट why not? Okay. मतलब it's a gesture of care, Okay. right? Hmm. Guys don't get hugs. Okay. What else do guys like? I mean, in general, as in, Okay. in general, say for example, okay, say for example कि जैसे chivalry जो होती है कि as a you know what guys expect or want, maybe they don't say, but कट कर दो, अभी थोड़ा 5 मिनट हंसेंगे हम लोग, थोड़ी NSFW बातें होंगी अभी ये यहाँ पे. question What guys want? 3 things guys want. ये question बोल रहे बस करो. अंकल अपनी बातों पे ताली बजाते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो वो अपना okay. वाइब कर रहे हैं बेटा, तो कंटिन्यू करो. बहुत बढ़िया कर रहे हो. so how Gen Z do you think you are? I'm not Gen Z at all. I'm a old School old school romantic एकदम at heart. die hard ऐसे Yeah. hand written letters Bring वाला. back masculinity. अच्छा आई थिंक अभी के जनरेशन में वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. एवरीथिंग हैज़ बीन यू नो चलता है टाइप्स एंड वेरी नॉर्मल और Yeah. कुछ चीज़ें जो नहीं नॉर्मलाइज होनी चाहिए वो हो चुकी है अभी. सो यू डोंट थिंक यू आर अ जेन ज़ी मतलब ये जनरेशन में? I understand Gen Z. I am Gen Z in certain things and certain things I'm not Gen Z. Like what? Like for example, अभी ये there's a song by Anuv Jain जो अभी आया, हुस्न नाम है उसका, right? ओके तो वो song is very popular. It is नंबर टॉप 5 में है वो गाना. Okay. क्यों है वो? Because it talks about situationships. ओके हाँ It talks about you know जब दो लोग साथ में होते हैं, they are exploring each other, and when one person falls for them and the other does not, right? And they just use it as more of a transaction. करेक्ट. तो what dynamic, what happens next is what is portrayed in that song, ओह right? तो आपने सुना है वो गाना? नहीं अभी तक नहीं सुना. बहुत आज इंटरेस्टिंग सुना. गाना है. you should listen to it, right? तो उसके म्यूजिक वीडियो में होता है, right? तो बंदी साथ डांस कर रहा होता है, तो the girl feels very special, ओके and then he leaves her and then he dances with the next girl, right? तो she is like कि I was just a object, Time. just a Okay. prop. ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए. नहीं मतलब यूज्ड फील हुआ होगा और समथिंग. हाँ, she just felt like that, right? तो उसमें वो लिरिक्स जो है ना वो तो वो लोगों को छू रही हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि Okay. इट इज एक्चुअली द रियलिटी. आप बैंगलोर में जाके देखोगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, राइट? Oh. पीपल आर इन सिचुएशनशिप्स, पीपल आर इन ओपन रिलेशनशिप्स, पीपल Open आर marriage. कंफ्यूज्ड, पीपल आर यू नो पीपल डोंट वांट टू कमिट. कमिटमेंट इश्यूज होते हैं बहुत लोगों को जेन जी में, यू नो ऑडियंस जो होती है, Correct. because they don't know. They've seen so many people on social media. They're like, कि भाई, why can't I date someone better? Right? Like, what if there's someone better for me? And they're just in that cycle. एंड हर बार वो आते ही रहेगा मतलब Yeah. अब आज आप किसी के साथ हो यू विल फाइंड समवन बेटर बट उसी के साथ रहना टिके रहना एंड यू नो मे बी प्रॉब्लम्स भी आए तो डील करना रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट Yeah. या चलो किसी और के पास चले जाओ. वो तुम्हें लगता है कि वो सामने वाला इंसान ज्यादा खुशी तो देगा. वही है वो गाने के अंदर वो बोलता है कि मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना. ओके राइट? तो वो जो लाइन है दैट इज व्हाट हिट्स एवरीवन. ओह सुनना पड़ेगा आज. सो व्हाट इज दैट वन सॉन्ग यू कैन लिसन टू ऑन लूप? आई थिंक इज दिस वन ओनली. अभी रिसेंटली वाला ये. हाँ, तो ये वाला गाना इज देयर. देन आदित्य रिखारी के बहुत प्यारे गाने हैं. तो 2001 रोज रोज करके गाना है येलो डायरी का, ओके दैट इज अमेजिंग. उसके अलावा बहुत सारे गाने हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज इंडी आर्टिस्ट, राइट? ऑल ऑफ दोज सॉन्ग्स आर क्लोज टू माई हार्ट. मजाक इज अ गाना, जाकिर बहुत अच्छा गाना है जो मैं सुनता हूँ. तो बहुत बड़ी लिस्ट आर यू है स्पिरिचुअल? यार. आई एम नॉट श्योर. आई एम स्टिल Do you believe एक्सप्लोरिंग. in this or? I obviously believe in a higher power, but I am still learning about things, Okay. right? But I think, मतलब I've been religious from my childhood, right? Like दादी जी ने सिखाई थी हनुमान चालीसा, एंड तब से जब भी कोई आता था वहाँ पे गेस्ट घर में हमारे, तो बेटा was like, सुना के मेरे बता। बेटे को आती है हनुमान चालीसा सुना के बता बेटा. तो मैं सुना था जैसे पूरा वो बोलते बढ़िया dance एकदम, करके मेरे को दिखा। एकदम it was on my tip of my tongue, Oh wow. right? तो
तो वो था. उसके बाद फिर ऐसे महाभारत आया करती थी टीवी पे, तो वो देखते थे. फिर रामायण 9992 की एनिमे वाली रामायण जो है वो देखी थी. तो मतलब ऑब्वियसली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. आई थिंक दैट there's so much to learn from महाभारत and भगवत गीता. Yes, उसमें बोलते सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स है भगवत गीता में. Yes. तो अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मेरे को गिफ्ट करी थी भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता. तो आई वाज जस्ट रीडिंग दैट एंड आई वाज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट. तो आई थिंक वो किताब को पढ़ने का तरीका ऐसा है कि आप एक चीज पढ़ो उसमें से, फिर आप उसको समझो अच्छे से, उसको एक्ट करो अपनी लाइफ में. वरना इट जस्ट बिकम जस्ट अनदर बुक दैट यू जस्ट रेड एंड कि ठीक है हो गया, पढ़ लिया, एंड इट्स लाइक अ चेक इन योर बकेट लिस्ट. सो व्हिच इज योर फेवरेट बुक? Spiritual books? Any book, like one top, you know, any, it could be self-help book, it could be anything that you... Yeah, I really, it depends a lot, right? Okay. It depends on my mood. For example, abhi recently I'm learning a lot from this book called as Same as Ever. Okay. तो Same as Ever एक किताब है जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है, the same author who wrote Psychology of Money. Okay. तो बेसिकली वो बताते हैं कि हम आजकल बातें करते हैं अबाउट क्या बदल रहा है, राइट, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हॉट, ब्रेकिंग न्यूज, बट हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि क्या चीज़ कभी चेंज नहीं हो रही, राइट. जैसे जेफ बेजोस बोलते हैं कि कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे हमेशा लोग चाहेंगे कि सस्ता दाम मिले और जल्दी डिलीवरी हो. ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग बोलेंगे कि भाई महंगा सामान क्यों नहीं मिलता, या फिर डिलीवरी देर में क्यों नहीं होती. ऐसा कभी नहीं बोलेंगे लोग. तो ही इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन व्हाट विल नेवर चेंज. Okay. तो and when he does that, he does not have to think of anything else. He is just focused on that. Okay. So how can someone develop the habit of reading? Yeah, I think you need to read what you love until you love to read. Oh, right? It's a very simple nice. quote. So, for example, जैसे I develop my interest into ये जो mystery या फिर thriller, adventure वाली जो fictional books होती हैं, and from there onwards I developed an interest into reading. So then I started reading more into fantasy. Okay. Game of Thrones की पूरी series मैंने पढ़ी. अच्छा. तो I learned a lot about how do you create worlds. George R.R. Martin, who is the author of that book, उन्होंने इतनी खूबसूरती से हर एक सीन को दिखाया है उसके अंदर, विद जस्ट इज राइटिंग, एंड यू कैन इमेजिन एवरीथिंग. पिक्चर, हाँ, उन्होंने एक एक चीज को बहुत ही है ना एकदम डिटेल में बताया है उसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स आउट देयर. एंड उस पे जो शो बना गेम ऑफ थ्रोन्स व्हिच वी ऑल हैव सीन. तो अगेन बैक टू द क्वेश्चन, राइट, यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट यू जेन्युइनली फाइंड इंटरेस्टिंग टू रीड एंड लर्न अबाउट. बहुत सारे लड़के जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए शायद क्रिकेट होगा, वो फुटबॉल होगा, वो या फिर GTA या फिर गेमिंग इंडस्ट्री होगी उनके लिए. तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट. रीड द स्टोरी ऑफ रॉकस्टार गेम्स. उन्होंने कैसे GTA बनाया. अगर आप सब लोग देख रहे हो तो आप सब GTA खेल खेल के बड़े हुए हो, राइट. तो इफ यू विल सी द बिहाइंड द सीन्स ऑफ GTA, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. एक 3 घंटे की वीडियो है विच इज द डॉक्यूमेंट्री ऑफ GTA. अच्छा. वो कैसे बना. GTA 5 जो है, GTA 6 आया है, तो ये GTA 5-6 है. उससे पहले GTA 1 भी तो था कभी भी. GTA 2, GTA वो कहाँ है, उसकी पूरी स्टोरी है वहाँ पे. तो आई थिंक थिंग्स लाइक दैट develop an interest in reading. And I feel then maintain consistency. Yeah. थोड़ा डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी रखो, एंड देन आई एम श्योर कि बुक से बहुत सीख सकते हैं. क्योंकि मेरे को लगता है कि जब तुम यूट्यूब वीडियो देखते हो, क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. एक वीडियो देखते हो, दूसरा थंबनेल दिखता है बहुत इंटरेस्टिंग, तो ध्यान तुम्हारा इससे अच्छा बुक पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, रादर देन यू नो वॉचिंग 10 वीडियोस और कुछ भी नहीं सीख रहे हो, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो. इसीलिए बहुत अच्छा एक टूल है जो आप बोल रहे हो कि बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्यूब से. तो एक नहीं ओके, तो एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप ये सारे डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर सकते हो यूट्यूब पे. उसका नाम अनहुक है. इट्स अ एक्सटेंशन ऑन क्रोम. तो उसको आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, एंड फिर वो क्या करता है, सारे सजेस्टेड वीडियो हटा देता है. अच्छा. सारे आपका होम पेज सारी वीडियो गायब. ओके, तो जो वीडियो आप एक वीडियो पिक करो, उसको वॉच लेटर पे ऐड करो, वॉच लेटर पे जाओ, क्लिक करो, आराम से देखो, नोट बनाओ, सीखो उससे. बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब. ओह ग्रेट, ऑसम. सो ईशान, you started content creation बहुत जल्दी, and a lot of people want to do it. So what would be your 3 piece of advice to someone who is starting content creation? यार मैं ये बोलूँगा कि अपनी ना खुद की आवाज़ ढूंढो सब में. Your own identity. हाँ, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो सबको ना किसी को कॉपी कर रहे हैं. कुछ गलत नहीं कॉपी करने में, कॉपी करने से ही आगे आप सीखते हो आगे, बट ऐसा कॉपी करो किसी को पता नहीं चले आपने कॉपी किया है. राइट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हाँ तो क्या होता है, लाइक जब आप 10 क्रिएटर को देखोगे और उनके बोलने के तरीके देखोगे और उनको आप मैच करोगे, तो
तब जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, खुद का आएगा योर तभी। यूनिक स्टाइल, करेक्ट। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज, जब मैं बड़ा हो रहा था अपने, जब मैं स्कूल के टाइम पे था, तो आई लव्ड वॉचिंग अनबॉक्सिंग वीडियोज ऑफ फोन्स, ओके। राइट? उस टाइम वैसे गैलेक्सी के फोन आ रहे हैं, कुछ आईफोन आ रहा है, तो मुझे वो देखना अनबॉक्सिंग होता क्या है, राइट? तो मैं हर साल बैठ करके वो देखता था। गिगी रंजीत करके एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, तो आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोज। तो वो सब देख देख के मैंने उनका इंग्लिश बोलने का ढंग अपने अंदर एक ले लिया, कर लिया, राइट? तो अब फिर मैं, मेरी इंग्लिश उस उन तरह की हो गई, उनके ऐसी हो गई। एंड वो हैदराबाद में रहते हैं, एंड इज अ साउथ इंडियन, राइट? तो उनकी इंग्लिश मैंने ले ली, कैप्चर कर ली। फिर मेरे एक बहुत अच्छे क्रिएटर नेथानियल ड्रू नाम है उनका, ओके। तो ही मेक्स वीडियोज अबाउट मिनिमलिज्म, अबाउट ऐसे ही डिजिटल नोमैड, कैसे आप हाउ कैन यू मेक अ लिविंग डूइंग व्हाट यू लव। तो आई पिक्ड अप अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम, I picked up a few things from some other person, and then I just got everything together, right? जैसे मेरे ये हाथ ऐसे घूम रहे हैं, तो मैंने किसी और से सीखा है ये, you cannot tell कि मैंने किससे सीखा है, Correct. but it's all of these little cues that we pick from people. ऑब्जर्वेशन तुम जब करते हो एंड देन खुद से ट्राई करते हो एंड देन अपना खुद का एक वो बिल्ड हो जाता है। ट्रू, आई फील कि जो लर्निंग तुम ऑब्जर्वेशन लोगों को सीखे, कि अगर से फॉर एग्जांपल यू एडमायर समवन, देखो वो कैसे बोलते हैं, उनके हैंड जेस्चर्स, कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है। सो आई हैव ऑल्सो लर्नड बहुत सारे लोगों से देख के कि, एंड जब तुम फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक तुम वो अपने में इनकलकेट करोगे अपने में, तो ग्रेजुअली माइंड को पता नहीं कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, देन वो तुम्हारा एक कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। Yeah. आई वुड वॉन्ट यू टू रैंक दीज 3 things 1 to 3: लव, फेम, मनी. What would what would be Ishan's rank? For me, I think the most important thing that comes is going to be love from my Okay. parents, from my Partner, team, friends. partner, जो भी है, partner तो नहीं है, but love is very important, right? I would have put money उसके ऊपर, Okay. but now it is love, Oh, okay. and उसके बाद it has to be money, right? And then the last would be fame. Okay. Fame is not as shiny as it looks. Okay, awesome. So ये एक्सपीरियंस से बता रहे हो? Yeah, मतलब yeah. oh, is it? मतलब ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे तुम बहुत सारे लोगों को देखते हो जो बहुत फेमस है, डूइंग गुड, हैविंग गुड नंबर्स, फॉलोइंग में अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोअर है, और कभी कभी आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनको देख के समवेयर वी सा दिस अनइंटेंशनल कंपैरिजन, कि देख के लग रहा है समवन इज डूइंग ग्रेट, वी फील मोटिवेटेड, बट एट द सेम टाइम हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कभी होता है? मतलब आप किसी के 50th चैप्टर को अपने फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर कर रहे हो, राइट? Okay. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट? एंड आप पता नहीं कि बंदा क्या दिखा रहा है सोशल मीडिया पर। जैसे देयर आर डेज जहाँ पर मेरे को आई एम हैविंग द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई जस्ट डोंट पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जाऊँ पोस्ट करूँ कि भाई वाट लगी हुई है गाइस, राइट? सो एंड इट्स जस्ट नॉट अ गुड व्यू ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज, राइट? तो आई थिंक वो समझना चाहिए लोगों को, एंड वो मैच्योरिटी से आ जाता है। Okay. तो So how much जब लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, राइट, जब वो बहुत सारी स्टोरी डाल रहे होते हैं, तो पूछता हूँ भाई तुम ठीक हो आज? is something going on? Looking for validation or So something? how much does number motivate you? Number in terms of followers? Body count? As in terms of followers, या फिर in terms of money, bang, how much does numbers motivate you? Followers में I would say कि यार फेम पे नंबर्स, I feel it is important अभी के ज़माने तो में। 2023 में मैं और मेरा मैनेजर जो यूट्यूब पर है, वी वर जस्ट चेकिंग द स्टैट्स एंड वी रियलाइज दैट वी क्रॉस्ड 10 करोड़ व्यूज, Oh wow. 100 million views in just 2023, Oh, right? अब it's a unimaginable number, okay. right? आप 10 करोड़ लोगों को कहीं खड़ा ही नहीं कर सकते। से वो दिखते हैं ना कि गाइस 50 के हो वो गए, स्टेडियम भी 50,000 2 लाख लोग का ऐसे होता दिखते है, हैं। स्टेडियम भी क्रिकेट का 2 लाख का हाँ, होता है। तो एंड अभी रिसेंटली आई हिट 1 मिलियन ऑन यूट्यूब, वाओ, राइट? अब ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, हम्म। एंड ये नंबर्स एक टाइम के बाद जस्ट नंबर्स बन जाते हैं। अगर Does आप, it also add to the pressure? ये प्रेशर तो क्या है, मतलब मेरे को एट द एंड आई नेवर हैड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, राइट? तो इट्स प्रीटी मच द सेम टू मी, एंड आई नो दैट इट्स ऑल अ प्ले। अभी है, कल नहीं है, दैट्स हाउ इट विल बी। तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड फोकस ऑन
if you have fame, congratulations. Just know that it won't last long, and just use it to build something. Oh, great. Build something for yourself, for your family, and build a legacy. Creator legacy. Legacy. हाँ. तो वो कोई आई थिंक इंस्टाग्राम पे वो रील बहुत वायरल हो रही है अभी कि be the greatest of your bloodline अच्छा. that your grandfather, your great grandfather have never seen before. Oh, ये सब देख के आया एकदम. प्रिपरेशन करके आया. तो आई थिंक वो समझ में आना चाहिए. अगर आप फेम के पीछे भाग रहे हो तो फेम माइट लुक वेरी शाइनी इन द फर्स्ट पॉइंट, बट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ बैंगलोर के कैफेज में एंड क्लब्स में, कई बार लोग मुझे देख के बात करते हैं मुझसे कि हाय ईशान कैसे हो आप एंड ऑल, बट कई बार ऐसे देखेंगे वो एंड वापस दिल बी बैक. तो मतलब आई कैन टेल वो मेरे को देख रहे हैं. अब मैं कोई ऐसे कुछ मैं बिगू डॉल तो हूँ नहीं. अब वो मेरे को देख रहे हैं घूर के, तो मैं दे नो हु आई एम. करेक्ट. They just don't want to come and say hi. So was there any moment कि यार लगे कि you know this was the moment that you were living for, या फिर एक बहुत something that you know still makes you smile एकदम a very special, what was the most special moment of your life? Special तो नहीं पता, मतलब there is no one special moment as such, but अभी आज I think एक हफ्ते पहले I just cried. Okay. After 2 years. Oh, that was special. It is not special. It was a happy feeling. Okay. It was a happy cry. Oh, wow. मैं सुबह उठा एंड उठते ही मैंने अपने ईमेल चेक करे एंड वहाँ से मैंने ईमेल देखा फ्रॉम गूगल. Okay. एंड दे सेड दैट ईशान मेरी एक दोस्त है जो गूगल बैंगलोर के एक इवेंट में तुमको इंटरव्यू कर रही थी एज अ वीडियोग्राफर, एंड उसने मुझे तुम्हारे बारे में रिकमेंडेशन दी कि ये ईशान अच्छा बोलता है, तो इसको किसी प्रोजेक्ट में करना है तो कर सकते हो. Okay. तो देन शी मैसेज्ड मी सेइंग कि ईशान आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी Oh, wow. एंड इन February would you be up for being a part of this project that we are doing at Google for developers. Wow. And I just looked at the Man. serendipity of coincidences that can occur in life. Correct. Right? There was no set thing कि मैं उस वीडियोग्राफर से मिलूंगा. She is from the Bay Area who recorded my footage when I was there in the Google Bangalore event. Okay. And we just met randomly. Right? And I asked a couple of things about her, ki, where are you from and what are you doing and all that. And she just told my name to someone and they just reached out to me. And some things are just planned. हाँ, तो I was just like कि मैं, and then I just went into flashback कि मैं 3 साल पहले कहाँ था. मैं ऐसे एकदम घोचू एकदम फर्स्ट ईयर में इधर तक पहुंचोगे. वही तो I just started crying. तो मैं जी भर के रोया. So that was a happy feeling. Exactly. So I was like, I'm so grateful for all the things that are happening. Right? I just cannot complain. Okay, so now I have a few interesting questions for you. The rule is you can't think much. You just have to answer it ऐसे. ठीक है? तो if you had one superpower, okay. So if you had one superpower, what would that be? To understand what you are thinking without what is your subconscious thought which you're not saying. सामने वाले इंसान का. Oh. What is your guilty pleasure? It is It's okay. Be unfiltered. I just spend too much time scrolling on reels. Okay. Yeah, that is my guilty pleasure. Your go-to person? It is my co-founders Saransh and Yash, who is a friend of mine. One skill that nobody knows about you. I can play tabla very well. Oh wow. Yeah. Nice. But I had to leave it because of the IIT JEE preparation. अच्छा, तो पहले कभी सीखा था? हाँ, तो 10th class में I learned it. I gave an exam, तो I have that basic qualification of playing tabla. Great. And जब भी कोई भी अरिजीत सिंह का गाना आता है ना, कोई भी गाना, and I know कि ये वाली ट्यून है वो धागे नती ना कदी ना धागे नती ना कदी ना, राइट? तो वो वाली ट्यून हर जगह फिट हो जाती है. And सारे बॉलीवुड सॉन्ग उसी ट्यून पे बनते हैं. तो I can just tell that कि भाई अगर मैं होता तो मैं बजा देता तबले के ऊपर. Oh wow. So if you had to change one thing in this country, what would that be? I would want it to be more capitalistic and less about socialism and all. Wow. What is one next thing on your vision board? To get fitter. Oh, Six-pack abs. So now you know what to do. Yes, sir. Awesome. How would you convince someone to take care of their health? How would I convince them to take care of their health? Yeah, I would just take their face, put it into Midjourney, and just make it look कि depressed photo of this person. तो ऐसे तुम झुर्रियों वाले फोटो बना देंगे. This is what you look like, my friend. अभी कर लो नहीं तो बाद में. पछताएगा बाद. So it was great talking to you, Ishan, and I had so much fun. Especially I don't know जो बीच वाला part था वो कट होगा कि नहीं.
वो मैं बात नहीं करी हमने उसके वाले क्वेश्चन के बारे में. What do guys Are we want? allowed? What do guys want? What do guys Do you want like? to tell? Do you want to tell? Do you want to go ahead? कुछ नहीं यार, they just three want things- security. Okay, yeah, okay. In, three things that guy really look for. I think they just look for surety. Okay. Right? जब दुनिया बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होती है, बहुत मतलबी दुनिया होती है, right? So they just want someone who can love them unconditionally, Okay, that one person. who doesn't judge them. Okay, second. यही चाहिए बस उनको, और कुछ नहीं Okay. चाहिए. तो इतना ही वो लड़कियों रखना. की मांगे वो होती हैं cut 1, कर. 2, 3, 4. हम लोगों को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है. पैसा. Awesome. Okay, so Ishan, it was great talking to you, and thank you so much for being here. I feel that you have a lot of people who look up to you, who follow you, and who admire you. What would be your last piece of advice for them who want to start something but they're a little hesitant of starting something new? What अभी would you? करो. क्या करो? अभी के अभी करो. ये अभी वीडियो को क्या? पॉज करो एंड स्टार्ट करो जो भी करना है. एक बहुत अच्छा वॉलपेपर है गैरी वी का, तो उसमें वो लिखते हैं, yes that whatever that just went through your mind, do that, just do it, ऐसा करके कुछ उनका वो है. And I've kept that as my wallpaper for the last 2-3 years. I look at it and I'm just like कि करना है, right? Great. So that mindset of just executing Do it now. should always be there. हाँ बस just keep executing. So thank you so much, Ishan, for being here. It was great talking Thank to you. you. I am sure all the people watching this video, they had a great time and बहुत कुछ सीखा होगा आपसे. If you liked it, do take a screenshot and post it on your social media. Yes. And also follow Ishan. And I am sure you're going to learn a lot from this 22-year-old guy. मतलब literally no degree can teach you आपने what. अपनी एज नहीं बताई मेरे को अभी तक. क्या? आपने अभी अपनी एज नहीं बताई मेरे को अभी तक. आप guess करो. How old do I look? तो she said that she has experience of 16 years. In yoga. Yes. I really don't know. I don't want to guess as well. Random, yaar. I mean, how old do I look? Maybe, You look 25, Okay. but when you say 16, it doesn't add up. How? I am 24. 24? Yes. तो 16 साल से कैसे कर रही होगा? So it is. I've been doing it with my mother. 6-7 साल की अच्छा थी. ऐसे नहीं ये तो अनफेयर है. ये तो कुछ भी है. क्या unfair है? नहीं क्या unfair क्या है? नहीं ठीक है, ओके. End क्या था? मतलब मैं क्या बोल रही थी बीच में? 3 बार एंड शुरू किया था. नहीं, इसने मेरी एज पूछी यार. एज नहीं पूछना चाहिए ना ऐसे. 3 बार एंड शुरू किया है. He said कि I can't guess your age. मतलब इसलिए मैंने वो. 3 बार एंड शुरू किया और फिर वापस. Okay, let's do this. Randomly ये पहले वाला अगर अच्छा नहीं है तो कट कर देना. चलो. So thank you so much for sharing your journey. It was quite interesting to know all of it. There's this one particular thing that I truly believe in and that is जब जिद्दी होगा दिल ज़रूर मिलेगी मंजिल. तो we are going to say it together. I'll say जब जिद्दी होगा दिल, आपको बोलना है ज़रूर मिलेगी मंजिल. So are you ready? Yes, let's do it. जब कैमरा में देखिए बोलना, okay? Okay. Come on. जब जिद्दी होगा दिल. जरूर मिलेगी मंजिल. Thank you so much everyone. This was Yesur Gandhi signing off.